मैग्नेटिज्म लेक्चर 2। ऐसे ठीक रहेगा ना सीक्वेंस करने में? यस सर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि कोई फाइनाइट वायर हो। मैं फार्मूला को रिवाइज करता हूँ, आप फार्मूला लिखवाओगे, मैं नहीं लिखूंगा तो आप बोलोगे कि क्या फार्मूला होता है। So let's say at a distance d there is a point P and the current I is going to flow from this wire, and one end is going to make an angle theta 1 and the other end is going to make an angle theta 2. So what is the magnetic field at this point? BP. B का formula और direction also is going to be back to form. बतलाइए। म्यू आई बाई 4 पाई d मल्टीप्लाई साइन थीटा 1 प्लस Mu साइन naught थीटा I. 2 Mu naught I by 4 4 पाई पाई मल्टीप्लाई d 4 pi d in साइन bracket. थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। Very good. Sin theta 1 plus sin theta 2, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। This is what is the formula due to a finite wire. So finite length of wire carrying current I. So this is the point P. So B at a point P which is located at a distance D. Clear? अब इसमें हम लोगों ने बात किया था कि इसमें स्पेशल केसेस हम लोग डिस्कस करें। सो पहला केस क्या हो? सो नीचे लेके चलते हैं। केस वन। केस वन। सो केस वन में क्या बात करेंगे हम लोग कि पॉइंट पी if point P lies on perpendicular bisector, यदि ये कंडीशन हो जाए, so someone try to end। तो पहला केस हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि if point P lies on perpendicular bisector, तो मैं एक वायर फिर से बना देता हूँ जिसमें करंट क्या जा रहा है मेरा, आई जा रहा है, और ये perpendicular bisector distance D, and let's assume that the length of the wire is L। ठीक है, सो ये हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? Is it going to be L by 2? So this is point P. So this angle is your theta 1 and this angle is your theta 2. So for this condition, if this point P is going to lie on the perpendicular bisector, it means we have theta 1 is equal to theta 2. Yes or no? यस सर। और मान लिया कि this angle is going to be your theta. Just assume that theta 1 और theta 2 दोनों किसके बराबर है? थीटा के बराबर। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो तो B is equal to mu naught I by 4 pi d sin theta plus sin theta। Yes or no? यस सर। Or what is the value of this sin theta? Let me just write mu naught I by 2 pi d sin theta, ऐसे भी लिख सकते हैं। यस सर। Now try to find out the value of sin theta in terms of d and L. So the value of sin theta, so I'm going to write here, sin theta is equal to, just look at this, so this theta 2 is also theta and theta 1 is also theta. So sine of theta, so this is going to be, let's call this point as O. This is A, this is B. So sine theta is nothing but
OB by PB. Yes or no? And what is Yes, this sir. PB? PB is going to be D square plus L by 2 whole square. Pythagoras theorem say what is OB? OB is nothing but L by 2 square root of 4D square plus L square by 2. क्या लिख सकते हैं? So this Yes. 2 Yes. and this 2 is cancel out. So मैं इसका वैल्यू बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ. So mu naught I by 2 pi d into sin theta means this is L by the square root of L square plus 4d square. This is what is the b. So 4 pi d हुआ है ना. Oh, sorry, 2 pi d, not 4 pi d. It's a 2 pi d. 2 यहाँ से कट गया ना, 2 sin theta. ये वाला Yes, टर्म. sir. So 2 cancel. So this is 2 pi d. 2 pi d sin theta. ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो हमारा b का फार्मूला है वो b का फार्मूला ये है. So mu naught I by 2 pi d L by square root of L square plus 4d square. केस को आगे बढ़ाएं. तो ये कौन सा केस था हमारा? केस 1. केस 2. केस 2. If wire is very long. इस वर्ड को मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि बुक्स वगैरह में या आपके एग्जाम पेपर में ऐसे वेरी लॉन्ग लिखता है. इफ वायर इज वेरी लॉन्ग मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट लेंथ. इफ वायर इज वेरी लॉन्ग मीन्स इनफाइनाइट लेंथ. इस केस में यदि हम बात करें तो इस केस में हमारा जो बी फील्ड है वो किसी पॉइंट पे क्या होगा? तो हमने एक वायर बना लिया और ये चूंकि इनफाइनाइट लेंथ का है सो दिस इज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी. दिस इज एक्सटेंडिंग टू infinity. There is a point P which is located at distance D, and let's assume that this is the angle. So this angle is your theta 1 and this angle is your theta 2. So बतलाइए कि थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू इस केस में क्या होगा if this wire is going to be of infinite length? 90 degree. Yes. So the value of theta 1 is equal to theta 2 is equal to 90 degree. So what will be the formula? B is equal to mu naught I by 4 pi d. This is going to be sine 90 degree plus sine 90 degree. Yes or no? Yes. तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 0. 1. पक्का? So this is 1 and this is 1. So 1 1 2 2 2 is 4. So फार्मूला क्या हो जाएगा? mu naught I by 2 pi d. So very simple formula. Clear? Yes, sir. तीसरा केस बात करेंगे. केस 3. If wire is of semi infinite length. What is the meaning of this semi infinite length? Semi infinite. तो इसका कुछ मतलब होता है. इसको डायग्राम से आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है.
तो ये एंड आपका फिक्स रहेगा and this wire is going to be to infinity from the one end and our point P lies at this point. So this type of wire is called semi-infinite wire. क्लियर है? अब Yes, इसके sir. कारण देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. So this is theta 2 and what is theta 1? नीचे यदि होता, सपोज ऐसे होता, so this angle is theta 1. अब ये छोटा होते होते पहुंच जाएगा तो थीटा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? The value of theta 1 is 0. Yes or no? सेमी इनफाइनाइट के केस में Yes, sir. सेमी इनफाइनाइट कब होगा? So look at this diagram. If theta 1 tends to 0, theta 1 का वैल्यू यदि हम 0 ले लें, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट किधर मूव करेगा? थीटा यदि हम डिक्रीज करते हैं तो इस O की तरफ, और थीटा 1 का वैल्यू यदि हम 0 ले लें तो ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. नहीं? हाँ जी, सबको बात समझ में आ Yes, रही sir. है? तो इस केस में सेमी इनफाइनाइट के केस में हम लोग क्या बोलेंगे? वी हैव थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 तो फिक्स हमारा इंफिनिटी पे ही है. सो थीटा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. क्लियर? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? सो b इज नथिंग बट mu naught I by 4 pi t in bracket sin 0 degree plus sin 90 degree. Sin 0 is 0 and sin 90 is 1. So this value is nothing but mu naught I by 4 pi t. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाओ. No, sir. हाँ जी. अब इसमें थोड़ा सा आप डायरेक्शन के लिए ध्यान दो. तो मैं हेडिंग डालता हूँ डायरेक्शन ऑफ बी. डायरेक्शन ऑफ बी. इसमें अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं. मैं एक ही मेथड यूज करता हूँ आपका. मान लो कि इस वायर में ऐसे करंट जा रहा है और मुझे इस बिंदु पे, मतलब इस पॉइंट पी पे मुझे निकालना है कि बी का डायरेक्शन क्या होगा. सो पुट योर स्क्रू इन दिस डायरेक्शन. ठीक है? ये स्क्रू है और करंट के डायरेक्शन में जाने के लिए आप स्क्रू को घुमाओ. तो देखो इसमें किधर घूमेगा स्क्रू. यदि मैं यहाँ पे घुमाऊं सो वी हैव टू रोटेट दिस इन दिस सेंस. यस और नो? Yes, sir. स्क्रू को ऐसे ही घुमाओगे ना, तभी ये आपके जो है वो करंट के डायरेक्शन में ये स्क्रू का मूवमेंट होगा. जब ऐसे घुमाओगे सो द मूवमेंट ऑफ स्क्रू इज इन दिस डायरेक्शन. तो Yes, करंट के sir. डायरेक्शन में आपका स्क्रू मूव करने लगा. अब ये जो लूप है, ये जो आपने बनाया है, अब इसको आप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. इस डायरेक्शन में से मूव कर रहे हैं. दिस इज 3D. इस लूप में ऐसे मूव कर रहे हैं ना. सो यहाँ पे जब जाओगे तो आप क्या करोगे? ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो ये पेपर में इन कर रहे हो. Yes, sir. और जब यहाँ पे आओगे, इस साइड के पॉइंट में आओगे, तो पेपर से क्या कर रहे हो? बाहर निकल रहे हो. तो जब यहाँ पे इन कर रहे हो तो एरो कैसा दिखाई देगा? एरो का बैक एंड दिखलाई देगा, क्योंकि एरो तो पेपर में इन कर रहा है. तो पीछे से दिखलाई देगा, तो पीछे से क्या दिखेगा? क्रॉस. और यहाँ पे एरो पेपर से बाहर निकल रहा है, तो पेपर से बाहर निकलेगा तो उसका टिप दिखलाई देगा. और जब टिप दिखलाई देगा तो यहाँ पे जो डी का डायरेक्शन होगा वो ये होगा. ठीक है? और इसका सबसे आसान तरीका यदि आप याद रख सकते हो, यदि ऐसे विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो,
तो इसको याद भी रख सकते हो। याद क्या रखोगे कि वायर में करंट का जो डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में हम फ्लो करेंगे और अपने दाहिने साइड क्रॉस दिखलाएंगे और अपने बाएं साइड क्या दिखलाएंगे। आप मूव करो इस डायरेक्शन में, सो आपका राइट इधर होगा, सो राइट में क्रॉस होगा और इधर में क्या होगा, लेफ्ट होगा, सो लेफ्ट में डॉट होगा। किसी भी वायर में मान लो कि मैंने एक वायर ऐसा दिया और इसमें करंट ऐसे आई दिख रहा है, तो किस कहाँ पे मेरा जो है वो क्रॉस होगा और कहाँ पे मेरा डॉट होगा, बतलाओ। नीचे क्रॉस ऊपर डॉट। नीचे क्रॉस ऊपर डॉट, क्लियर है ना। जैसे मैं Yes, sir. यहाँ पे वायर दूं और इसमें करंट ऐसे फ्लो कराऊं, तो किधर होगा क्रॉस, किधर होगा डॉट। लेफ्ट में हुआ सर, क्रॉस। लेफ्ट में, क्रॉस। गुड, राइट इधर में डॉट। 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 एक और एग्जांपल लेते हैं। इस डायरेक्शन में यदि हम करंट फ्लो कराते हैं तो ऊपर क्रॉस नीचे डॉट। ऊपर क्रॉस नीचे नीचे डॉट। डॉट, क्लियर हो गया। हम्म, यदि मैं ऐसे करूं तो करंट आई, तो इधर में क्रॉस, इधर में डॉट। डॉट। डायरेक्शन समझ में आ गया। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द पेज, मतलब पेज के अंदर, और ये अभी फ्रॉम द पेज, ठीक है। हाँ यस जी, सर। किसी को कोई तकलीफ है तो बतलाओ। Yes. डायरेक्शन में डायरेक्शन क्लियर हो गया, क्योंकि अभी हम लोग मूव करने वाले हैं थोड़े प्रॉब्लम की तरफ। तो मैं आता हूँ, तो अभी जो भी बातें हम लोग की हैं थोड़ा देखते हैं। तो डायरेक्शन में भी आपका राइट हैंड थंब रूल, तो व्हेन द पॉइंट पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये इनफाइनाइट वायर का हो गया और ये सेमी इनफाइनाइट का हो गया, क्लियर। हाँ, ये केस बच गया, व्हेन द पॉइंट लाइज अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। तो अगले केस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कौन सा हो गया, ये केस 3 हो गया था ना, केस 4। केस 4, when point P lies along the wire। ये बहुत जगह मिलेगा आपको। तो मेरे पास एक वायर है ऐसा, कोई सा भी फाइनाइट लेंथ का है, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो कुछ भी हो, और जो हम पॉइंट लेने वाले हैं वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इसी लाइन के लॉन्ग, इसी वायर के लॉन्ग। तो ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना, कहीं पे भी ये पॉइंट हो सकता है, मतलब इसी लाइन के लॉन्ग कहीं भी पॉइंट हो। तो इस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बी, सो लेट्स दिस इज ए, दिस इज बी। सो इस केस में पॉइंट बी पे मेरा बी क्या होगा, थोड़ा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई, या म्यू नॉट बाई 4 पाई। हम लोग बायोट सावर्ट्स लॉ लगा रहे हैं, अभी बेसिक फॉर्मूला। सो दिस इज आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला था ना। मैं यहाँ पे एक एलिमेंट यस ले सर। लेता हूँ, लेट्स से दिस इज dl, and what is the direction of this dl vector in the direction of current, this is our dl vector, and what is your r vector, is this your r vector, is the position vector from dl, yes or no। Yes, sir.
So what is the angle between DL and R? It's a 0 degree 0 degree. because R भी इसी डायरेक्शन में है और DL भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री. तो थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 डिग्री. एक और केस बन सकता है कि DL आपका इस डायरेक्शन में हो और R आपका इस डायरेक्शन में हो. यदि ये वाला पॉइंट कंसीडर करें हम लोग E प्राइम, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा एंगल? थीटा इज इक्वल टू 180 degree. 180 डिग्री. तो दोनों केस में व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर R? So this is nothing but DL into R into sine of theta, and sine of 0 is 0 and sine of 180, sine of 180, sine of 180 is also 0. So these values, so this value DL R sine theta is always going to be 0 due to the value of this theta, whether it is going to be 0 degree or 180 degree. जो भी वैल्यू हो, आपको कोई सा भी पॉइंट हो, या तो आपने पॉइंट P कंसीडर किया है या P प्राइम कंसीडर किया है. तो किसी भी केस में एंगल जो है आपका पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी लाई करेगा, सो थीटा का जो वैल्यू है या तो वो 0 डिग्री होगा या तो वो 180 डिग्री होगा, और दोनों ही केस में द वैल्यू ऑफ DL क्रॉस R इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B इन दिस केस? Because this DL cross R is going to be 0, so the whole thing is going to be 0. Yes or no? Yes, sir. तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि यदि पॉइंट वायर के अलोंग हो तो वहां पे मेरा जो बी फील्ड का वैल्यू है वो क्या होता है? हमारा 0 होता है. एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट? इफ नो, just move to the problem. So we have given the first problem. Calculate the magnetic field induction at point distance this meter from the straight wire. So ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? At a point distance इतना मीटर from the straight wire of length A. So straight wire का length कितना दिया हुआ है? A. और कितना distance पे? So this is the value of your D. Yes or no? Yes, sir. Clear? And carrying the current I ampere. The point is on the perpendicular bisector of the wire. कहाँ पे है? Perpendicular bisector पे. Example 1. बोला है कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर है और इसका लेंथ है कितना? A. और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट P है which is going to be located at the distance A root 3 by 2. Clear? And this is going to lie on the perpendicular bisector. So this angle is theta. So this angle is also theta. Clear? And the current I is going to flow in this wire. And this point is your O. So if we are going to apply the formula for the B at point P. So what is formula for B? So B is equal to, I'm going to write the general formula, mu naught I by 4 pi D, and this is going to be sine theta plus sine theta. Is it okay? Yes, sir. So if the total length of this wire is A, so what is the length of this half wire? This is A by 2. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Clear?
So if I'm going to find out, so this is a by 2 and this is, so I'm going to find out the value of theta. So देखो तो what is the value of tan theta? A by 2 divided by a root 3 by 2. So 2 a. So this is 1 by root 3. So tan में 1 by root 3 किसका वैल्यू होता है? 30 10, डिग्री। 30 डिग्री. So थीटा का वैल्यू हमें निकल गया 30 डिग्री. अब देखते हैं यहाँ पे. So this is going to be mu naught I by 4 pi. And what is your d? So this is nothing but your d. Clear? So a root 3 by 2, and this is going to be sine 30 plus sine 30. हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? 2 2 are 4. So if I'm going to write mu naught I by 2 root 3 pi a, क्या लिख सकते हैं? और yes, into 2 into sine 30. Sine 30 is half. Clear है? So this 2 and 2 is going to be cancelled out. So what we have is b is equal to mu naught I by 2 root 3 pi a. And if I'm going to represent this as a vector quantity, so what is the direction of this vector? Cross or dot? क्रॉस। हाँ जी, क्रॉस है। cross. So I'm going to represent this as cross. किसी को कोई confusion? Clear है सबको? yes, sir. यस सर। चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ. एक एक सवाल करेंगे, आराम से करेंगे, प्यार से करेंगे. तो यहाँ पे दिया है फाइंड द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड एट सी इन द फिगर शोन. अब यहाँ पे देखो आपका एक रेक्टेंगल दिया है और रेक्टेंगल में आपका करंट फ्लो कर रहा है और एक साइड का लेंथ है रूट 3a और एक का है a और करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज. तो मैं इसको बनाता हूँ. So we are going to discuss the second problem, example 2. एग्जाम्पल 2 में आपको क्या बनाया है? मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम ले रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो. कुछ ऐसा ही है. इसका लेंथ कितना लिया है? रूट 3a और इसका लेंथ क्या लिया है? a. और इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और कहाँ पे निकालना है हमें? इसके मिड पॉइंट पे. और ये पॉइंट दिया हुआ है C. एंड लेट्स अज्यूम दैट दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S. ठीक है. और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेट वायर है ना, फाइनाइट लेंथ का. सो फाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? mu naught I by 4 pi d ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. ये होता है. अब यहाँ पे देखो, मैं इस वायर को देखूं, PQ को देखूं, तो PQ के लिए क्या ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है? यस सर। हाँ जी. यस सर। लेट्स कॉल दिस डिस्टेंस एज d1. क्या QR के लिए भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? यस सर। तो क्या इसी तरीके से ये चारों वायर के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? यस क्लियर. सर। यदि यस मैं सर। इस डिस्टेंस को d1 बोलता हूँ तो इसको मैं d2 बोल लूँ. तो आप बताओ कि d1 का वैल्यू क्या होगा? क्या ये a बाई 2 होगा, आधा लेंथ? यस सर। और d2 क्या हो जाएगा? रूट 3a बाई 2.
सो d2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3a/2। क्लियर? Yes, sir. यदि मैं इसके लिए ये एंगल θ1 मान लूं और ये एंगल में θ2 मान लूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये भी θ1 होगा। सो मैं एक एक वायर का करके लिख रहा हूँ। मेरे पास टोटल 4 वायर हैं। कौन कौन से 4 वायर हैं, PQ, QR, RS, SP। यस और नो? और ये चारों वायर के कारण हमें अलग अलग जो है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके जो है स्टार्ट करता हूँ। सो फॉर वायर PQ, तो PQ के कारण यहाँ पे C पॉइंट पे क्या होगा, B, लेट्स कॉल दिस एज BPQ इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई D1 साइन θ1। लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. लिख सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगा, Cross, sir. क्रॉस डॉट, हाँ, Cross. क्रॉस, यस, कुछ सही। क्योंकि यहाँ पे अब चार चार है ना, तो चार को ऐड करना है, इसलिए चारों का डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए कि उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या कंपोनेंट वगैरह लेना है। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस साइन θ1, साइन θ1, या साइन θ1 की जगह हम θ1 निकालते हैं। सो θ1 में आप देखो कि ये वैल्यू कितना है, a√3/2 और ये है a/2। सो व्हाट इज tan θ1, tan θ1 is a√3/2 by a/2। ऐसा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सबको दिखलाई दे रहा है? So this is your θ1, this is a/2 and this is a√3/2। So this is what is the tan θ1। So tan θ1 is this, so a/2 a/2, so this value is going to be √3। This is tan θ1। So what is θ1, is it going to be 60 degree? Yes, sir. चलो अब θ2 के बारे में देखते हैं। So this is your a/2, this is a√3/2 and this angle is θ2। What is the value of tan θ2? a/2 by a√3/2। So this is nothing but 1 by √3। What is the value of θ2? 30 degree। Yes or no? Yes, sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू रखे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखने पे क्या होगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई। व्हाट इज D1? Look at this diagram. What is D1? a/2। I'm going to substitute this value as a/2 into sine of θ1। θ1 is 60 degree, so sine of 60 degree and the direction is cross। मैं आराम से चल रहा हूँ ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 2 कैंसिल। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2. गुड। सो दिस इज म्यू नॉट I √3/2 पाई a and this is going to be cross and this is BPQ। yes or no? Yes, sir. क्या इसी तरीके से हम तीनों वायर का निकाल सकते हैं? फॉर वायर QR क्या लिखेंगे, दिस इज BQR is equal to म्यू नॉट I बाई 2 पाई D2 sine of θ2 and what is the direction?
जस्ट लुक एट दिस, क्रॉसिस क्रॉस ही होगा ना, क्योंकि इसके राइट साइड में भी पॉइंट पड़ता है। सबको क्लियर है? So this is going to be your cross. अब वैल्यू रख लें। So this is nothing but mu naught I by 2 pi, and what is d2? d2 देखो तो √3a by 2, कोई ये दिक्कत? बाई 2 तो यहाँ पे लिखेंगे √3a by 2, और sin theta means sin 30. So this 2 and this 2 is going to be cancel out, and this is obviously cross. So बताओ क्या वैल्यू हो जाएगा? Sin 30 is half. So this is nothing but mu naught I by 2 √3 pi a. अरे हाँ की ना, यस सर अगला क्या लिखेंगे? फॉर वायर आर एस। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, क्या ये दोनों वायर सिमेट्रिकल हैं, एक ही जैसे हैं, एक ही लेंथ के हैं? और क्या इन दोनों के लिए जो मेरा एंगल भी है वो भी सेम है? दिस इज ऑल्सो θ1। Yes, sir. तो इसके कारण जो यस यहाँ पे सर मैग्नीट्यूड होगा, क्या इसके कारण भी वही मैग्नीट्यूड होगा? Yes, sir. बात क्लियर है सबको? बस केवल डायरेक्शन देखना है कि डायरेक्शन क्या होगा, डॉट होगा कि क्रॉस होगा। और देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा आर एस के कारण? सर क्रॉस ही होगा क्रॉस ही होगा। गुड। तो इसके कारण भी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी ड्यू टू आर एस क्या लिखेंगे? म्यू नॉट, ऊपर में क्या आया था? म्यू नॉट आई √3/2 पाई है, म्यू नॉट आई √3/2 पाई ए, एंड दिस इज ऑल्सो क्रॉस। सिमिलरली फॉर वायर एस पी क्या लिखेंगे? बी एस पी, मैग्नीट्यूड तो ऊपर वाला ही होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 √3 पाई ए। अब थोड़ा डायरेक्शन देख लेते हैं, देखो डायरेक्शन बतलाओ एस पी के कारण यहाँ पे। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्रॉस। Yes, यस sir. और नो? सबको बातें क्लियर है ना? Yes, sir. यस सर कोई है जिसको ये भारी लग रहा है? नो सर किसी को भारी नहीं लग रहा है ना? अब थोड़ा देखो यहाँ पे कि सारा का सारा वेक्टर तो एक ही डायरेक्शन में है, सब किधर जा रहा है? इनटू द पेज, इनटू द है ना? जब सब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो क्या करते हैं हम लोग उसको स्केलर की तरह जोड़ देते हैं, और फाइनल वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में हो जाता है। यस और नो? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सी ड्यू टू 4 wires, due to 4 wires क्या लिखेंगे? दिस नेट बी इज इक्वल टू बी ड्यू टू पी क्यू। देखो मैं वेक्टर एडिशन कर रहा हूँ, क्यू आर बी आर एस प्लस बी एस पी लिख सकते हैं। बी पी क्यू क्या है? म्यू नॉट आई √3/2 पाई ए प्लस म्यू नॉट आई 2√3 पाई ए प्लस म्यू नॉट आई √3/2 पाई ए प्लस म्यू नॉट आई बाय 2√3 पाई ए। और इन सब का डायरेक्शन किधर है? क्रॉस। यस और नो? अब सॉल्व करो, Yes, sir. कुछ कॉमन आ जाएगा। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए क्या सब में है? म्यू नॉट आई Yes, बाई sir. 2 पाई ए, तो यहाँ बचा √3, यहाँ बचा √3, तो इसको लिखेंगे
2√3 plus mu naught I by 2 pi a. So 2 by √3. अरे नहीं, थोड़ा सा एलसीएम और ले लें। सो mu naught I by 2 pi a, ऊपर में हो जाएगा √3 लेंगे तो हो जाएगा 3, 3 to the 6, 6 plus 2 8, 8 by √3। अरे हाँ की ना। Yes, sir. सो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 mu naught I by pi a √3, this is cross, this is b, डन। क्या निकल जाएगा, इस तरीके से निकाल लोगे। Yes, sir. चलिए देखते हैं, आते हैं हम लोग आंसर की तरफ और मिलाते हैं आंसर को। मैंने अभी इसको लॉन्ग वे में किया है। देखो यहाँ पे सिमेट्री को लेके ऐसे लिखा हुआ है, तो ये आप प्रैक्टिस करते करते आप लोग को आ जाएगा। अभी मैं लॉन्ग वे में लेके जा रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे सवालों को। अब थोड़ा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 3 में, figure shows a square loop made from uniform wire. Find the magnetic field at the center of the square if battery is connected between the point A and C. तो यहाँ से करंट इन करेगा और यहाँ से करंट आउट करेगा, और चूंकि ये दोनों सिमेट्रिक हैं तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, स्क्वायर है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ से, हाँ जी, तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, सब लोग हो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So figure shows a square loop made from uniform wire. Find the magnetic field at the center of the square if a battery is connected between the point A and C. मतलब अब यहाँ पे चूंकि सिमेट्रिक है तो मान लेते हैं कि इधर से करंट 2I जा रहा होगा। सो यहाँ पे जंक्शन आया करंट वाला कॉन्सेप्ट, तो इधर से कितना करंट जाएगा और इधर से कितना करंट जाएगा, क्या इधर से भी I जाएगा, इधर से भी I जाएगा, और ये दोनों मिलके Yes, फिर sir. यहाँ से 2I निकल जाएगा। बराबर बराबर क्यों जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है ना। इस ब्रांच का भी रेजिस्टेंस और इस ब्रांच का भी रेजिस्टेंस सेम होगा क्योंकि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वायर एक ही तरीके के हैं। बात समझ में आई। Yes, sir. यस और नो। सो जो इस वायर के कारण ए बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा, क्या वही मैग्नीट्यूड इसके कारण भी होगा, सी डी के कारण, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है और इनका डिस्टेंस भी सेम है। यदि ये डी है तो ये भी डी है क्योंकि स्क्वायर है ना। Yes, Yes, sir. sir. सबको क्लियर है इतना बात। तो इसमें मेरा करंट जा रहा है आई और इसमें भी करंट जा रहा है आई, और दोनों हमारे सिमेट्रिक हैं। सो ए बी के कारण इस पॉइंट ओ पे जो मेरा बी फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, Dot, sir. डॉट। किसके कारण, ए बी के कारण, और डी सी के कारण, Cross. डी सी के कारण क्रॉस। सो एक वेक्टर नीचे की तरफ है और एक वेक्टर ऊपर की तरफ है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट वेक्टर क्या हो जाएगा, Subtract. एक इधर में है। सो दिस इज ए, मान लो आई हैट, और दूसरा इधर में भी एक है जिसका मैग्नीट्यूड ए है लेकिन डायरेक्शन ऐसा है। सो ए और माइनस आई हैट हो जाएगा, दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो व्हाट इज द नेट, ए आई 0. हैट माइनस ए आई हैट, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। इक्वल Zero. और अपोजिट वेक्टर यदि हो तो उनका सम क्या होता है, 0 होता है। 0. मतलब ए बी और डी सी का नेट इफेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है सबको इतना बात। यदि ऐसा ही हम लोग कंक्लूजन और ऐसा ही रीजनिंग हम लोग इस वायर पे लगाएं, किस पे, बीसी पे और सीडी पे, तो देखो तो सीडी में भी करंट आई, इसमें भी करंट आई। सो सीडी के कारण, सॉरी सीडी बोल रहा हूँ, ए डी के कारण इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, क्रॉस या डॉट, Cross. क्रॉस।
और जितना ए डी के कारण यहाँ पे होगा क्या उतना ही बी सी के कारण होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। यस और नो? मैग्नीट्यूड तो Yes, दोनों का sir. सेम ही होगा। तो अब देखें, तो बी सी के कारण यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? बी सी के डायरेक्शन यहाँ पे Dot. बी सी के कारण, डॉट तो दिस इज गोइंग टू बी डॉट। तो ये भी अपोजिट वेक्टर्स हैं, एक डॉट है और एक क्रॉस है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये भी कैसे हो गए? इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स। सो इनका भी नेट क्या हो जाएगा? जीरो। सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? बोलो। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट दिस पॉइंट इज जीरो। आई बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक। लगा दिया? अब इस वाले सवाल पे देखो, ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसने बोला कि मेरे पास दो इनफाइनाइट वायर है, दिखाई दे रहा है ना? इन द फिगर शोन देयर आर टू पैरेलल, देखो कौन सा वर्ड यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है? लॉन्ग वायर्स। तो लॉन्ग वायर्स का मतलब इनफाइनाइट लेंथ, है ना? प्लेस इन द प्लेन ऑफ द पेपर, सो पेपर के प्लेन पे इसको रखा गया है। आर कैरिंग करेंट्स टू आई एंड आई, तो टू आई एंड आई डायरेक्शन में दिखाया हुआ है। Consider points A, C, D on the line perpendicular to both the wires. So एक लाइन ये है और इसी लाइन पे मेरा क्या है? तीन पॉइंट्स हैं, एक A, C और D, है ना? So the distance are mentioned. So distance यहाँ पे मेंशन किया है, A/2 है, ये A है और ये A है। So अब आपसे सवाल पूछा, बोल रहा है कि B at AC and D. So B निकालना है A पे, C पे और D पे। पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ACD वेयर B is 0। तो आपको पॉइंट ढूंढना है जहां पे जो B है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और किस लाइन पे? तो लाइन ACD पे आपको पॉइंट ढूंढना है कि इस लाइन पे कौन सा ऐसा लोकेशन है जहां पे मेरा B का वैल्यू क्या होगा? 0। सवाल समझ में आ गया सबको? हाँ जी। यस सर सो दिस इज एग्जांपल 4। तो लेके चलते हैं इस डायग्राम को। 1 2 and this is going to be very long, very long, very long, and this is very long. Infinity, 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 infinity। और इसमें जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है? 2I। और इसमें करंट नीचे की तरफ I फ्लो कर रहा है। और हमारे पास एक ऐसा लाइन है which is going to be perpendicular to these two wires। क्लियर? और फिर हमें यहाँ पे कुछ बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। सो दिस इज ए, दिस इज डी, और एक बिंदु यहाँ पे है, दिस इज सी। इसका डिस्टेंस दिया हुआ है ए यहाँ से, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है ए यहाँ से, और इसका डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? A/2 से A ए में से बाई A भी A/2 दिया हुआ है, और इन वायर के बीच का डिस्टेंस है ए, और ये भी ए, ये भी ए, 2I ठीक दिया है ना? ACD, चलो सब कुछ ठीक है। So this distance is your A, not point. So this is the midpoint, and this distance is going to be A/2। कुछ ऐसा ही सवाल है? और हमें ए पे, यस सर सी पे और डी पे बी फील्ड निकालना। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये दोनों इनफाइनाइट वायर। सो हमारे पास दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए कि इनफाइनाइट वायर के कारण बी का फॉर्मूला क्या था। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड देखोगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी।
this is what is the magnetic field due to infinite wire. Yes or no? Yes, sir. So हम आते हैं so at point A, एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं. So at point A, मान लिया कि ये मेरा वायर 1 है और ये मेरा वायर 2 है. सो 1 के कारण यहाँ पे थोड़ा बदलाव कि मेरा बी फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. 1 के कारण Dot. Dot, तो sir. 1 के कारण डॉट, 2 के कारण क्या क्या होगा. Cross. यस, ठीक है. और मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि B at point A is equal to, let's call B1 plus B2, vector B1 plus vector B2, B1 due to wire 1 and B2 due to wire 2. अरे हाँ की ना, Yes, sir. लिख सकते हैं ना. अब थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस का देखो, देखो यहाँ पे क्या करना है, करंट का वैल्यू डालना है अपन को और डी का वैल्यू डालना है. सो यदि वायर 1 के कारण कैलकुलेट करेंगे तो वायर 1 में हमारा करंट क्या हो जाएगा 2i, और पॉइंट ए के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए. यस और नो. Yes, sir. Yes. Yes, sir. गुड. तो यहाँ पे डालें B1 का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे म्यू नॉट, और आई की जगह क्या लिखेंगे 2i बाई 2 पाई, और डी की जगह क्या लिखेंगे ए, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे इसका 1 के कारण क्या था डॉट. कोई दिक्कत. No, sir. प्लस B2 की बात करते हैं. सो B2 के कारण तो इसमें करंट का मैग्नीट्यूड आई ही है, और डिस्टेंस देखो तो ए और इस वायर के बीच का. सो दिस इज ए एंड दिस इज आल्सो ए, सो नेट डिस्टेंस इज 2a. हाँ, वायर 2 Yes, से sir. ये पॉइंट कितना दूरी पे है, Sir. 2a डिस्टेंस पे है ना. तो वैल्यू ऑफ डी इन दिस केस इज गोइंग टू बी 2a, और करंट हमारा आई रहेगा. सो क्या लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, और डी की जगह क्या लिखेंगे 2a, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे क्रॉस. Cross. कोई दिक्कत. देखो No, तो ये sir. आया मेरा No, sir. म्यू नॉट आई बाई पाई ए डॉट प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए. कौन बड़ा है डॉट वाला कि क्रॉस वाला. Dot. डॉट बड़ा है. मान लो कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो ये हमारा डॉट वाला बड़ा है और ये क्रॉस वाला हमारा छोटा है. सो नेट हमारा क्या होगा, नेट हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो नेट हम ऐसे लिख सकते हैं क्या म्यू नॉट आई बाई पाई ए माइनस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, and the net is in the direction of dot. Yes, sir. Yes. अब कैसे लिखेंगे. सो ये दो वेक्टर है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा वेक्टर एडिशन करता हूँ. तो ये एक वेक्टर, पहला दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, डॉट वाला हो गया ना, और ये हो गया हमारा क्रॉस वाला. तो हमारा रूल क्या है, पहले वेक्टर के एंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर. और रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड. ठीक है. सो दिस इज योर वेक्टर बी, this is your B2, and this is your B1. तो देखो क्या हो जाएगा, B किस डायरेक्शन में होगा, डॉट के डायरेक्शन में होगा. सो दिस इज द वैल्यू. तो क्या लिखेंगे, सो दिस इज 3 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए बी एट ए. किसी को कोई तकलीफ.
नो सर। समझ में आ गया ना या नहीं? यस सर। चलिए, सो अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सो एट पॉइंट सी, एट पॉइंट इसी तरीके से हमको बस करते चले जाना। एट पॉइंट सी, बड़े आराम से। सो बी at point C is again going to be the B due to 1 plus B due to wire 2। अब इस केस में B1 और B2 का वैल्यू क्या होगा? तो देखो, इस केस में यहाँ पे हमारा जो है इस वायर के कारण C पे, वायर 1 के कारण C पे मेरा डायरेक्शन क्या होगा? क्रॉस या डॉट? क्रॉस। क्रॉस। तो वायर 1 के कारण क्रॉस, और वायर 2 के कारण क्रॉस ही होगा सर। इसके कारण भी क्रॉस ही होगा। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड अप हो जाएंगे। अब मैग्नीट्यूड की बात यस करें सर। तो ये पॉइंट जो है ये इस वायर से भी a/2 डिस्टेंस पे है और इस वायर से भी a/2 डिस्टेंस। मतलब दोनों के केस में जो d का वैल्यू लेंगे हम लोग, क्या लेंगे? d का वैल्यू a/2 ही होगा। क्लियर? लेकिन वायर 1 के केस में 2i और वायर 2 के केस में i। तो लिखे डायरेक्ट वैल्यू हम। थोड़ा चेक कीजिएगा, यदि कंफ्यूजन हो तो बतलाइएगा। सो दिस इज म्यू नॉट, और वायर 1 के केस में करंट है मेरा 2i बाय 2 pi a, और द डायरेक्शन इज क्रॉस, प्लस म्यू नॉट, करंट की जगह पे आई, डिस्टेंस है 2 pi a, दिस इज ऑल्सो क्रॉस। यस और नो? क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 म्यू नॉट i बाय 2 pi a, and the direction is cross. This is the B at C। अरे हाँ की ना? यस सर। हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से हम लोग अब कौन से पॉइंट पे निकालेंगे? एट पॉइंट डी। चलिए डायग्राम पे चलते हैं। एट पॉइंट डी, अब डी पे देखो। सो वायर 1 के कारण यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? ये इसके राइट वर्ड में है, राइट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस। और इसके कारण, वायर 2 के डॉट। कारण, सो डॉट। डिस्टेंस देखा जाए तो वायर 1 के कारण डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस भी ए, तो नेट 2 डिस्टेंस है। कितना हो जाएगा? सो 2a, और वायर 2 के कारण ए। ठीक है? तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग B at point D is equal to, again we can write B1 plus B2, and if we are going to write B1 is mu naught, करंट में क्या है? 2i डिवाइडेड बाई 2 pi, और डिस्टेंस कितना है? क्या 2a है? और डायरेक्शन क्या है? क्रॉस। किसी को कोई तकलीफ? नो दिस सर। इज म्यू नॉट i बाई 2 pi, और डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे? a, और इसका डायरेक्शन डॉट। कोई कंफ्यूजन? No, sir. So if you are going to solve, so this is mu naught I by 2 pi a cross plus mu naught I by 2 pi a डॉट। तो दोनों अपोजिट हैं और दोनों इक्वल भी हैं। दिखलाई दे रहा है? दोनों का मैग्नीट्यूड यस सेम सर। है। mu naught I by 2 pi a अंदर की तरफ और mu naught I by 2 pi a ऊपर की तरफ। तो इसका नेट कितना हो जाएगा? 0। 0। करेक्ट। So B at point D is going to be 0। सर किसी को सी कोई पे कंफ्यूजन? a/2 ना होगा डिस्टेंस? सी पे ए बाई कहाँ टू पे? सर होगा ना, सी पे। सी पे? एट सी सर। एट सी। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे ए रख लिया है। नहीं, उसी से मैंने बताया। a/2 यस होगा। सर। करेक्ट करेक्ट, थैंक यू।
कितना हो जाएगा? दिस 2 इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, सिंपली दिस इज 3 म्यू नॉट आई बाई पाई ए, क्योंकि ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ऐसा ही हो जाएगा ना? यस सही सर। है? यस सर, आप ठीक हो। अब जाके ठीक है, गुड। तो सोच देखते रहे हैं थे कि लास्ट सवाल में में बोले। और, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, बस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो हमसे पूछा है कि बी एट ए सी एंड डी निकालो, देखते हैं क्या क्या आया है, क्या निकाला है। ये कैंसिल यहाँ पे है, तो ये आया है क्या? 3 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए डॉट, यस उसके सर। बाद दूसरा आंसर यहाँ पे आया है 3 म्यू नॉट आई बाई पाई ए क्रॉस, यस सर। तीसरा 0। ठीक है सब। यस सर। अगला सवाल क्या पूछा है? पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ए सी डी वेयर बी इज 0, मिल तो गया, कौन सा पॉइंट है भैया? डी ये सर। वाला है, डी डी। पॉइंट है। डन। So it is clear from the above solution that B is equal to 0 at point D. Clear? अरे हाँ Yes, की sir. ना। सो मैं अब 2 सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, होमवर्क, होमवर्क। सो इस सवाल में देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसमें थोड़ा सा 3D का विजुअलाइजेशन है। वायर को यहाँ पे रखा गया है, मतलब इसमें जो करंट है ये बाहर की तरफ, मतलब इसका यदि आप डायग्राम देखो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इस पे 2 वायर जो हैं वो ऐसे, एक वायर ये है और एक वायर ये है, और इस वायर में मेरा ये W1 है, वायर 1 और वायर 2, इसमें करंट ऐसे इन कर रहा है आई, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है आई। तभी हम इधर से देख रहे हैं तो यहाँ से क्या दिखाई देगा? डॉट। और यहाँ से देखेंगे वायर को तो इसमें करंट उधर जा रहा है, दिस इज क्रॉस, है ना। और यहाँ से इस प्लेन के परपेंडिकुलर में यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया, ये वाला, और यहाँ पे आपको जो है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो थोड़ा सा यस सर। विजुअलाइजेशन का है, यस सर। देखेंगे कि इस स्क्रीन पे हम लोग कैसे करेंगे। तो चीजें वही हैं, केवल 3D में लेके गया है। बात जो ऊपर कर रहे थे सेम वही बात यहाँ भी करना है आपको, है ना। तो थोड़ा सा केवल विजुअलाइज करना है कि बी वगैरह कैसे होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व किए हैं। यहाँ पे एक सीट में करंट जा रहा है, और इस सीट के कारण पॉइंट पी, तो अभी तक हम लोग किसके कारण निकाल रहे थे? एक वायर के कारण निकाल रहे थे। अब इसका कुछ एरिया है और इस एरिया में करंट जा रहा है, अब इसके कारण यहाँ पे निकाल, सो थोड़ा सा सिचुएशन चेंज है, ट्विस्टेड है। तो इसमें थोड़ा मैथ्स लगेगा, वही इंटीग्रेशन वाला है, अब देखोगे समझ में आ जाएगा। यदि खुद से बना लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आज का यस क्लास सर। हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। यदि किसी को किसी भी तरह का कोई भी परेशानी है, यू कैन आस्क।